Good morning to all of you. Let's continue the chapter number 8, and today's our topic is parliamentary system. As we are learning the main features of constitution, the next feature of constitution is parliamentary system. Means संसद जिसे हम कहते हैं, ठीक है. India has a parliamentary system of governance. In a parliamentary system, the parliament is a supreme authority representing people. Okay, the legislature at the union is the parliament, and the parliament is bicameral, means it has two houses, upper house and lower house. As we all know that constitution have many features, and one of the features is parliamentary system. And so India has a parliamentary system of governance. So parliamentary system में सुप्रीमेसी जो होती है वो पार्लियामेंट्री होती है. Okay, so the central government, there are two houses, first upper house and lower house. ठीक है, three main organs are there. As we learned in standard 8, we already learnt it. The central government has three main organs: first legislature, second executive, and third judiciary. Okay, wait a minute. Let's see with the chart. Let's see the main organs of the government. Means at a central government, at a central level, यहाँ पे करते हैं. Three main organs are there. First, legislative assembly, means parliament, and there is one house, the lower house is Lok Sabha and the upper house is Rajya Sabha. Then in executive, prime minister is there, and then council of minister. Okay, and at judiciary, Supreme Court is at the top. Okay, we already learned this in 8th standard. Okay, same like this as at a state government. Three main organs are there. Legislative assembly, means legislature, means Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. And then executive, chief minister is at the top, and the other council of ministers. And at the judiciary level, High Court is at the top. Okay. So the parliament is bicameral, means it has two houses. Underline this: parliament is bicameral, and two houses are there: upper house and lower house. Upper house is called Rajya Sabha, and lower house is known as Lok Sabha. So underline this. Right? Though the government is carried on in the name of the president at the union, the governor in the states, actual administration is carried by the council of ministers, headed by the prime minister at the union, the chief minister in the states. Okay, so upper house जो है, okay, so गवर्नमेंट जो है वो जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो इज द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स एट द यूनियन, मीन्स सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट के नाम से ही पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता है. ठीक है, प्रेसिडेंट इज एट द टॉप. ठीक है, सो प्रेसिडेंट इज एट द टॉप. वही तीनों के जो ऑर्गन्स हैं उनको चलाते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो ही चलाते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, सेंट्रल को या फिर यूनियन. ओके, एंड एट द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर इज एट द टॉप, एंड द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज रन ऑन द नेम ऑफ गवर्नर. ओके,
Okay. The Council of Ministers is responsible to the legislature that comprises representatives of the people. और जो ये मिनिस्टर्स सभी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं, वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हम लोगों ने, हम पूरे इंडियंस जो है उन्होंने थ्रू इलेक्शन उनको इलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको, ठीक है। जैसे हमें पता ही है कि इलेक्शन आता है तो हम सभी लोग जो है वो वोटिंग करते हैं, 18 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो वोटिंग करते हैं, और उनके हमारे चॉइस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, कैंडिडेट्स जो है, उनको वोट देकर उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, ठीक है। सो देर आर द डिफरेंट मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स। Okay, the president selects 12 people who are experts and experienced from various fields for राज्य सभा। और जो प्रेसिडेंट है वो 12 पीपल जो है उनको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय selected by president, okay, who are experts experienced in various field, okay, जो ऐसे talented people हो, intellectuals people हो, experienced हो, एक्सपर्ट्स हो कोई भी एक फील्ड में, उन ऐसे 12 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए समझ में आया, राज्यसभा में 12 पीपल्स आर सिलेक्टेड, डायरेक्टली सिलेक्टेड फ्रॉम प्रेसिडेंट। राज्यसभा ए परमानेंट हाउस इन विच 1/3 members retire every 2 years, the same number of member for election। और राज्यसभा में एवरी ईयर 1/3 मेंबर जो है, 250 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर जो है वो एवरी 2 इयर्स पर रिटायर होते हैं, और सेम नंबर पर मेंबर्स जो है वो एवरी ईयर इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सो राज्यसभा नेवर डिसोल्व, वो कभी बर्खास्त नहीं होती है, डिसोल्व नहीं होती, क्योंकि एवरी ईयर 1/3 मेंबर जो है वही रिटायर होते हैं, और वही ऐसे इतने ही मेंबर्स जो है वो फिर से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सो राज्यसभा जो है वो कभी बर्खास्त नहीं होती है, और उनका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है। सो एवरी 2 इयर्स पर सभी को रिटायर होना होता है। सो thus each member has 6 years of tenure in Rajya Sabha, this Council of States. Okay. The powers of Rajya Sabha are less compared to the Lok Sabha, which is special, superior and decisive. लोक सभा के जितने भी पावर्स है उससे बहुत कम पावर है राज्यसभा के पास, क्योंकि लोक सभा जो है वो स्पेशल एंड सुपीरियर है और डिसीजिव है, उनके डिसीजन ही सभी को फॉलो करने होते हैं, क्योंकि लोकसभा से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि मेजोरिटी पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, सो राज्यसभा के नॉट बी कंप्लीटली डिसोल्व, इसीलिए राज्यसभा जो है वो कभी डिसोल्व नहीं होती है, कंप्लीटली डिसोल्व नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि एवरी ईयर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और 1/3 मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं, और सभी का टेन्योर जो है वो 6 इयर्स का है। सो अंडरलाइन दिस, ओके। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री। ओके, अभी सभी को याद रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। So the Constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें इम्पार्शियल जुडिशियरी दी है, जो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, क्योंकि कोई भी अगर जजमेंट करना हो, किसी को अगर जस्टिस देना हो तो इम्पार्शियली जस्टिस देनी चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि अपनी तरफ से वो पूरी तरह परफेक्टली जो जस्टिस है लोगों को दे सके। सो इम्पार्शियल होनी चाहिए। देयर इज सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, then there are high courts in state, and under its jurisdiction are the district courts at district level and the taluka level. There are local and special courts. Okay, so let's see the judiciary at the central level. Judiciary में supreme court is at the top, and state level पर जो है वो high court is at the top, and then district court, ठीक है।
एंड तालुका कोर्ट, ये सभी उसके अंडर में आते हैं। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सभी को फॉलो करना होता है, इट इज सेंट्रल लेवल, और इट इज स्टेट लेवल। हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो सभी को फॉलो करना होता है। उसके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके अंडर में तालुका कोर्ट होती है। और यहाँ पर अगर किसी को जस्टिस ना मिले, किसी को सेटिस्फेक्शन ना हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर सेटिस्फेक्शन ना मिले तो वो हाई कोर्ट पर जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट हो वो सभी को फॉलो करना होता है। फिर भी अगर कहीं ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट के जस्टिस से भी अगर सेटिस्फेक्शन ना हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, सो ऑल हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड उसका जो जजमेंट होता है वो सभी को फॉलो करना होगा। ठीक है, so the judgments of Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nations। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होता है वो सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो उनको फॉलो करना होता है। In case of conflict between the union and state governments, matters relating to constitution and interpretation of statutes, the final decision is vested with the Supreme Court। अगर कोई ऐसे स्टेट्स लेवल पर या फिर यूनियन और स्टेट दोनों का जो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, तो ऐसे मैटर में लॉज जो है उनको, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो और जो स्टेट्यूज है मीन्स लॉज जो है वो सभी को फॉलो करना होता है, और उसमें कोई यूनियन और स्टेट लेवल पर कोई इंटरप्रिटेशन करता नहीं है। सो फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। ठीक है, स्टेट लेवल पर हो या फिर यूनियन लेवल पर हो या फिर दोनों के बीच में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है वही फॉलो करना होता है। The Supreme Court is the protector and guardian of the Constitution। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर भी है, मीन्स जो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है सभी को, एंड इज ए गार्डियन ऑल्सो, वो गाइड भी करता है, ध्यान भी रखता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ये सभी फीचर्स जो है वो हमने देखे। अभी नेक्स्ट फीचर जो है वो अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि कई सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट्स मीन्स उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद जो भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए हो, करेक्शंस किए गए हो वो। ठीक है, सो अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर टू अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायनेमिक। in comparing the other countries, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनेमिक। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है, कंटिन्यूस एक्टिव रहता है, कंटिन्यूस काम करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत से चेंजेस सिचुएशन के हिसाब से उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, या फिर जब भी जरूरी हो, रिक्वायर्ड हो, व्हेन एवर इज रिक्वायर्ड is to be changed in amended in constitution। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना हो तो ऐसे ये 3 ways जो है जहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सभी की परमिशन भी चाहिए। तो कौन से ऐसे 3 ways है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस में चेंजेस कर सके। फर्स्ट जो है वो अमेंडमेंट्स कैन बी मेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट। अमेंडमेंट्स अगर करना हो तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स जैसे हम क्लास में करते हैं, इलेक्शन करते हैं या फिर अपने अपने ओपिनियन जानते हैं तो आपको हैंड्स अप कराते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी अमेंडमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर सिंपल वोटिंग्स। ठीक है, वोटिंग देकर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड इज सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर ए स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा, कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए जाते हैं कोई भी प्रोविजंस में, कोई भी
लॉज में कुछ अगर अमेंडमेंट करना हो, सॉरी, तो 2/3 जो मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, जितने भी मेंबर्स है वो वोटिंग करें। ठीक है, अगर उसमें से 2/3 मेजोरिटी मिले तो वो अमेंडमेंट्स जो है वो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 and the concurrence not less than 50% of the state legislature is required। अगर ऐसी स्टेट और यूनियन के रिलेटेड कोई भी अगर मैटर हो तो उसमें भी 2/3 मेजोरिटी जो होनी चाहिए, या फिर 50% से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, मीन्स 50% जो उनकी कॉन्करेंस होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स उनकी प्रेजेंट जो है वो 50% होनी चाहिए। तो 2/3 मेजोरिटी अगर मिले तो भी वो कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है। So if there is any amendment to be made in the interrelation between union state structure of or in supreme judiciary, then half of the states from the total states have to give consent। मीन्स अगर कोई अमेंडमेंट में अगर यूनियन और स्टेट लेवल पर ऐसे कोई अमेंडमेंट हो जिसमें सुप्रीम जुडिशियरी में हाफ या उससे भी ज्यादा अगर मेंबर जो है वो अपनी कॉन्सेंट दे, मीन्स परमिशन दे, तो भी उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट, मीन्स सुप्रीम कोर्ट भी अगर अपनी परमिशन दे सकती है। मीन्स कोई भी कोर्ट की जजमेंट हो, कोई भी कोर्ट की जजमेंट हो तो वो भी अगर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ला सकते हो। मीन्स अगर मेजोरिटी मेंबर्स थ्रू ना हो सके तो जजमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी परमिशन दे सकते हैं, कॉन्सेंट दे सकते हैं। देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस कभी नहीं होता है। ठीक है, बट इस तरह से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, वो भी सभी की परमिशन के साथ। Simple majority in parliament can bring change in the amendment of the constitution. That's why the constitution is known as the most inconstant and flexible document, but certain cases it is not changeable, amendable by simple majority। इसलिए सिंपल मेजोरिटी से भी पार्लियामेंट में ऐसे चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। जो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी हो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया? इनकॉन्स्टेंट, इनफ्लेक्सिबल। कभी भी फ्लेक्सिबल है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह से उनको फ्लेक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो और without the majority consent of states is not amendable। तो कोई भी मेजोरिटी के बिना उसमें चेंजेस नहीं आ सकते, सो इट इज नॉट अमेंडेबल, मींस चेंज नहीं कर सकते। then to the mixture of both make the constitution। इसलिए ये जो मिक्सचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, मींस वो कभी भी अमेंडमेंट कर सकते हैं उसमें। सो ये पार्लियामेंट भी उसमें अपनी कंसेंट दे सकते हैं, मीन्स अपनी परमिशन से उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चेंजेस कर सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट कर सकती है। सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ओके, तो आज तक हम यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से हम करेंगे। ओके, थैंक यू।